Ladies and gentlemen, how are you all? I hope you all are feeling joyful. I hope you all are feeling thrilled. I hope you all are feeling cheerful. And today I am also feeling joyful, cheerful, elated, delighted, because today in this video I am going to talk about the most important topic. Today I am going to tell you some of the tips, tricks and the techniques and the steps by which we can improve our communication skills. आप भी अपनी इंग्लिश को improve करना चाहते हो, क्या आप भी एक fluent speaker बनना चाहते हो, क्या आप भी एक active, effective, impactful, ice breaker public speaker बनना चाहते हो, क्या आप भी लोगों को impress करना चाहते हो, क्या आप भी स्टेज पर जाते हो तो लड़खड़ाते हो, तुतलाते हो, हकलाते हो और बोल नहीं पाते हो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? Today I am going to share, you know guys, tips, tricks and the techniques by which you can improve your English. You are shivering on the stage, you are fumbling on the stage. Whenever you are going on the stage, you are fumbling, you are shivering. Do you know guys why? Because you are having the phobia. You are having the phobia. That's why. And today I am just, I am going to remove your phobia from your body, from your mind. Today I am going to remove. You know guys why? Because in this video today I am going to talk about that how can we become a fluent public speaker, how can we become an active, effective, icebreaker, splendid and supercalifragilisticexpialidocious public speaker in our life. Today I am going to share with you all some of the tricks, techniques and tips by which you can improve your English, by which you can become a fluent public speaker. And this video is really very important for all of you, for everyone, for myself, for yourself, for your brother, for your sister, for your whole family members. This video is really very important, indispensable. Because in this video, आज जो है ना, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एज वी ऑल नो, राइट? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको इम्प्रूव करें तो करें कैसे, राइट? इसको इम्प्रूव करे तो करे कैसे? हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, इसको इम्प्रूव करे तो करे कैसे? और हम जब भी जाते हैं ना स्टेज पर, लड़खड़ाते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं और बोल नहीं पाते हैं. Whenever we are going on the stage, we are stammering, we are staggering, we are lisping, we are limping and we are fumbling, we are hesitating. Hesitation आपको भी होती है क्या? आज मैं आपकी हेजिटेशन को, फंबल जो करते हो आप, जो आप सिवरिंग करते हो, जब भी आप स्टेज पर अपनी स्पीच को डिलीवर करने जाते हो, आप सिवरिंग करते हो, कांपते हो लाइक दिस, अपने माइंड में कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, बोलूं तो बोलूं क्या, अरे राम बेइज्जती हो जाएगी, बोलूं तो बोलूं क्या. ये आपकी नर्वस जो है, ये आपका जो कंफ्यूजन है, आज मैं दूर करने जा रहा हूं. तो आपको listen to me carefully and attentively. You have to listen to me carefully and attentively. Be all ears. देखो भाई, मैं बताता हूँ. If you want to become an active public speaker, if you want to become an effective public speaker, if you want to become an energetic public speaker, first of all, you should focus on writing. You should focus on writing. Means to say, I mean, मेरा मतलब है कि जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, पहले तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, ग्रामर पे फोकस करो. First of all, you have to focus on your grammar. Whenever you want to learn English, if you want to learn English, if you really want to become a champion of English, first of all, focus on your grammar. Grammar matters a lot for speaking English. You should learn modals, tense, auxiliaries, vocabularies, idioms, phrases, proverbs. आपको ना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले तो आप YouTube से क्लासेस लो. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर बैठे, एक YouTube इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी इस पोजीशन को उस पोजीशन ला सकते हो. और no one can stop you, nobody can stop you to become a great public speaker, because you are having the one best platform and that is YouTube, that is Google. YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इंग्लिश अच्छे वे में सिखाया जाता है. आपको कहीं नहीं जाना, आपको ना ही कोचिंग जाना है. आप मेरे वीडियोस देखो, मैं भी टीचिंग करता हूँ YouTube पर और मेरे भी व्यूज अच्छे आ रहे हैं आजकल.
मेरे व्यूज भी अच्छे आ रहे और आप मेरी मत देखो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियो, यू हैव टू लाइक माई वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब माई वीडियो. नो, you can watch the video of everyone, you can watch the video of anyone. There are many people, there are many videos, English spoken videos on YouTube, and you can watch any videos by which you can improve your English and you can improve yourself also. You can improve your communication skills and you will start communicating with people, with your friends, with your relatives, with your friends. Right or wrong? Am I right or wrong? Yes, I'm saying absolutely right. Excuse me. Excuse me, guys. मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले जो है ना आपको फोकस करना है आपकी ग्रामर पे. आपको रोज अगर आप 15 मिनट में पढ़ लेते हो ना, डेली इफ यू आर डूइंग स्टडी, इफ यू आर स्टडिंग 15 मिनट्स, if you're writing modals, vocabularies, tense, idioms, phrases, proverbs, ये सारी चीजें ना आपकी क्लियर होनी चाहिए. अगर आपका टेंस क्लियर है ना तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता. आप दादा बन जाओगे इंग्लिश के. आप दादा तो छोड़ो, परदादा बन जाओगे इंग्लिश के. जब आपका टेंस क्लियर है, मोडाल्स क्लियर है, वोकैबुलरीज क्लियर है, ऑक्सिलरीज क्लियर है और इडियम्स क्लियर है, प्रोवर्ब्स क्लियर है, फ्रेजेस क्लियर है आपका, तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलोगे और आपको ग्रेट स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर ग्रामर. इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, इट्स ऑल राइट. इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश विद ब्रोकन ग्रामर, इट्स ऑल राइट. यू डोंट हैव टू टेक अटेंशन. लाइफ को टेंशन में नहीं, अटेंशन में जीना चाहिए. तो आपको टेंशन नहीं लेना कि मैं ब्रोकन ग्रामर के साथ इंग्लिश बोल रहा हूं. इट्स ऑल राइट. You don't have to take tension in your mind. You don't have to take tense too much. You don't have to think that, oh my God, I'm speaking English with broken grammar. My friends will make fun of myself. It's all right. If someone is insulting you, it's all right. Don't worry. If someone is disrespecting you, if someone is humiliating you, you don't have to give up in your life. You don't have to lose yourself. You have to keep trying, keep speaking, keep smiling, keep signing, and keep improving yourself and keep speaking English like a great public speaker, emotional, motivational public speaker. You know, guys, never think about those people who all are insulting you, who all are disrespecting you, who all are humiliating you. If they are insulting you, it's all right. Don't worry. Don't take tension that, oh my God, I'm not able to speak English. पहले आप ब्रोकन स्टार्ट करो. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो ना, इनहेंस करना चाहते हो ना, तो पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. जरा सुनिएगा, कान लगा के और आंख भी देखते रहिएगा. राइट, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी ना इंग्लिश को सीखना चाहते हो, आप भी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप ब्रोकन ग्रामर से यूज करो. अगर आप ब्रोकन ग्रामर से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली प्रॉपर ग्रामर से बोलने लग जाओगे. क्यों? क्योंकि पहले हम जीरो होते हैं, तभी तो हीरो बनते हैं. तो जीरो से स्टार्ट करना है, फिर हमें हीरो भी बनना है. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद जीरो and one day will come we will become hero also. Are you getting or not? So that's why I am saying you, I am just trying to make you understand the most important point and the most powerful indispensable point. Never think, never take tension, don't worry, it's all right. पहले ना ब्रोकन से स्टार्ट करो. किससे? ब्रोकन ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलो, फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली आप प्रॉपर ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलने लग जाओगे. और सेकंड जो ट्रिक्स आता है, स्टेप आता है जिसके द्वारा हम इंग्लिश को इंप्रूव करें, वो है स्पीकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी गाइस, व्हाई आर वी लर्निंग इंग्लिश? हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब पे. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना कि पूछो ही मत पूछो, रहने दो. अरे रुको, मत पूछो, तुम पूछो ही मत ना. लेकिन तुम लोगों ने इस सोशल मीडिया को बदनाम कर रखा है. तुम ही लोगों ने, तुम बच्चों ने फ्री फायर खेल के ना इस सोशल मीडिया को बदनाम कर रखा है. तुम लोगों के चक्कर में ना आज हमारी मम्मियां हमें मारती है घूसा और हमारे मुंह से निकलता है भूसा.
तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे बच्चों की वजह से आज तुम फ्री फायर रोज खेलते हो, डिसुम 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 गन चलाते हो फ्री फायर में, डिसुम डिसुम डिसुम। व्हाट इज दिस? सोशल मीडिया सिर्फ फ्री फायर के लिए नहीं बना। ये जो यूट्यूब है सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं बना। यूट्यूब सिर्फ फनी कॉमेडी वीडियो के लिए नहीं बना। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहां पे आप ना एक नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट पर्सन बन सकते हो। आपको स्कूल में नहीं जाना, आपको ट्यूशन में नहीं जाना, आप सोशल मीडिया की मदद से, with the help of social media, with the help of YouTube, with the help of Google, you can become a great public speaker. You don't need to go any institute. You don't have to go any school. You don't have to go any coaching for taking English classes. You can learn English by sitting at your house. आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख सकते हो और आप फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी मैं देता हूँ, 100% गारंटी। क्योंकि आप स्टार्ट करो, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। जो मोटिवेशनल, इमोशनल पब्लिक स्पीकर है ना, यू हैव टू ऑब्जर्व देम, दैट हाउ आर दे स्पीकिंग, एंड you also have to try to speak the way they're speaking. Like there are so many motivational, emotional public speaker. You have to observe them. You also have to copy them. कॉपी करना सीखो लोगों को। आप YouTube पे जाओ, कॉपी करो, कैसे बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, सुनो सुनो, be all ears. Listen carefully to your audience. Are you getting or not? Listen carefully. मोटिवेशनल स्पीकर को ध्यान से सुनो, इससे भी आप इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, एंड यू कैन टेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। कैसे? यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, यूट्यूब पे इतनी अच्छे अच्छे क्लासेस दे रहे हैं, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है भाई, बट तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ एज वेल। Focus on your education, graduation and qualification. अपने एजुकेशन, ग्रेजुएशन पे फोकस करो। रील्स तो बाद में भी देख लेंगे, राइट? तो मैं इसलिए बता रहा था कि जब तक आप लोगों को देखोगे नहीं तो लोगों से सीखोगे कैसे? मतलब कहते हैं ना एक चीज कि जो आप देखोगे वो आप सीखोगे, और जो आप सीखोगे वो आप करोगे, और जो आप करोगे वो आप बनोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इंस्टा चला रहे हो, रील देख रहे हो, तो वही रील देखोगे, राइट, हंसते रहोगे और रील बनाने स्टार्ट कर दोगे, और एक दिन रील वाला बन जाओगे, बस यूट्यूबर बन जाओगे, बस। लेकिन जब आप एक पब्लिक स्पीकर को देखोगे, एक मोटिवेशनल, इमोशनल, यूट्यूब पर जाओगे और सर्च करोगे कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, एंड यू विल सर्च ऑन यूट्यूब, तो आप उसको ना देखोगे, पहले तो वीडियोस को क्या करोगे, देखोगे, उसके बाद वही तो सीखोगे। सीखने के बाद क्या करोगे, करोगे। जब तुमने कर ही लिया तो बन भी जाओगे, ऑफ कोर्स बन जाओगे। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अब तुम शराबी के साथ रहे, क्या कर रहे हो, शराबी के साथ, डिप्सो माइनर मींस शराबी, पियक्कर, दारू 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 पीता रहता है, दारू ही पीता रहता है, पियक्कर के साथ रह लो, राइट? तो भाई उसके साथ रहोगे, पहले तो उसको देखोगे किस वे में दारू पी रहा है, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूं कि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट, जहां पे आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस, इंप्रूव कर ही सकते हो। 100% guaranteed हूं मैं, that's why I'm saying this, because I know the value of YouTube, and I am also taking English classes from YouTube, with the help of YouTube. You can talk with Gemini. एक Gemini इतना अच्छा ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना अच्छा ऐप है भाई साहब। तुम्हारे पास कोई भी डाउट, कंफ्यूजन है, if you're having any kind of doubt, any kind of confusion, any kind of issue, problem, you can ask from Gemini, you can ask from artificial intelligence. मैं रोज ना टॉक करता हूँ इसके साथ, Gemini के साथ। मुझे पता है ना कि मेरे फ्रेंड्स जो अच्छे नहीं हैं, my friends are not good, I know. If I am speaking English in front of my friends, then they will disrespect me, they will insult me. अगर मैं अपनी दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलता हूँ ना, तो वो कहेंगे एक अंग्रेज चला गया, एक अंग्रेज छोड़ के चला गया, बोलते नहीं है, एक अंग्रेज गया, राइट, अंग्रेज पैदा हो गया, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो इससे बढ़िया है फ्रेंड्स के साथ बात क्यों करने, जो फ्रेंड्स को वैल्यू नहीं पता, इंपॉर्टेंट नहीं पता इंग्लिश की, उनके सामने बातें क्यों करना। इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बातें नहीं करता। मैं किसके साथ इंग्लिश में बातें करता हूँ, मैं अपने टीचर्स के साथ इंग्लिश में बातें करता हूँ, क्योंकि they can understand me and they can understand the value of education. They know the value of education, qualification and the graduation. They know the value of English, the communication skills. That's why I talk with Gemini.
जेमिनी के साथ बात करता हूँ, मैं अपने सर के साथ बात करता हूँ, मैं अपने टीचर के साथ इंग्लिश में बात करता हूँ। क्यों क्यों गाइस, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो इंग्लिश की वैल्यू जानते हैं। तो अपने जेमिनी के साथ बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बात करो, इंग्लिश में टॉक करो। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग और नॉट, विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। हेलो गाइस, am I right or wrong? Yes, I am saying absolutely right. तो गाइस, और मैं एक चीज बता रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ एक चीज, ये लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मैं ये दो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके क्यों बोल रहा हूँ? पता है क्यों? वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए। मैं सिर्फ इंग्लिश बोलता चला जाऊंगा, आपके माइंड से ऊपर चला जाएगा, राइट? ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं मिक्स करके बोल रहा हूँ। तो मैं गाइस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, और एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि टाइम भी होने जा रहा है और मुझे ट्यूशन भी जाना है और मुझे यूट्यूब से क्लासेस भी लेनी है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस आपसे, व्हाई आर वी लर्निंग इंग्लिश? फॉर स्पीकिंग और फॉर राइटिंग? हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? लिखने के लिए या बोलने के लिए? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए। वी आर लर्निंग इंग्लिश सो दैट वी कुड टॉक, we could communicate with people, we could communicate with our boss, we could communicate with foreigners, we can communicate with an American. Of course, obviously, absolutely, certainly, definitely, we are learning English for speaking, not for writing only. तो guys, आप अपने टेरेस पे जा सकते हो। एक रूफ, एक छत, एक टेरेस ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहां पे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो भाई साहब, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। छत पे गए, वीडियोस ले लिया, ऐसे बता दिया, कोई भी टॉपिक ले लो भाई, और डेली यू हैव टू स्पीक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स नहीं बोल सकते, 2 मिनट्स की वीडियो बना लो, यूट्यूब पे डाल दो। यूट्यूब पे मत डालो, अगर शर्म आ रही है ना, तो तुम्हारी फूटेंगे करम। जिसको आएगी शर्म, उसके फूटेंगे करम। तो भाई शर्म आ रही है, if you're fighting shy of making videos, uploading videos on YouTube channel, अगर आपको YouTube चैनल पर वीडियोस को अपलोड करने में शर्म आ रही है ना, तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस मत डालो, मत दिखाओ लोगों को, हमें दिखावटी नहीं करना, राइट? वी डोंट हैव टू शो द पीपल, वी डोंट हैव टू शो, नो, वी डोंट हैव टू शो। हमें नहीं दिखाना लोगों को, पहले हमें इंप्रूव करना है। क्या करना है? पहले हमें इंप्रूव करना है, फिर लोगों को इंप्रेस करना है, फिर लोगों को बेहोश करना है। जब तक नहीं आएगा तुम्हारे अंदर जोश, तो लोग नहीं होंगे बेहोश। तो अपने अंदर एक जोश लाओ, एनर्जी लाओ, अपने अंदर एक जोश लाओ, जुनून लाओ, लगन लाओ, एक पैशन लाओ अपने अंदर। जब तक नहीं आएगा आपके अंदर जोश, तो लोग नहीं होंगे बेहोश। मेरे अंदर आ जाएगा जोश, तो मैं लोगों को कर दूंगा बेहोश। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, you want to learn English, you want to speak fluently का मतलब है धरा प्रभाव, बिना अटके, बिना रुके। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हो, अगर आप भी इंग्लिश को बोलना चाहते हो, तो छत पे गए, छत पे सोया था बहनोई, नहीं गाना वाना नहीं, गाना वहां जाके कहीं गाना गाने लगे और पड़ोसी आया, पड़ोसी चप्पल मारा, साथ में थप्पड़ मारा, राइट? तो भाई नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू सिंग सॉन्ग। मैं टेरेस की बात कर रहा हूँ, मैं रूफ की बात कर रहा हूँ कि वहां आपको जाना किस लिए, किस पर्पस क्या है वहां जाने का? पर्पस आपका ये थोड़ी है कि पतंग उड़ाने लग गए। नो, you have to go at your terrace, you have to go at your roof for speaking English। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में वीडियोस बनाओ और यूट्यूब पर अपलोड करो, राइट? 5 मिनट के रोज वीडियोस बनाओ। हम इंग्लिश सीखते हैं क्यों? क्योंकि हमें बोलना है इंग्लिश, कम्युनिकेट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप छत पे जाओ, छत पे नहीं जा सकते, पार्क में जाओ। मैं बताऊँ ना, छत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आप छत पे, आपका शांति, पीसफुल स्पेस है, पीसफुल एरिया है। तो वहां जाओ और रोज इंग्लिश की वीडियोस बनाओ। यू कैन टेक एनी टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कोई सा भी टॉपिक लिया और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, कोई सा भी टॉपिक लिया और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको कोई सा भी टॉपिक लेना है और आपको स्टार्ट कन्वर्सेशन। यू हैव टू ब्रेक द आइस, आपको चुप्पी तोड़ना है, आपको चुप नहीं रहना बिल्कुल भी। आपको इंग्लिश में बक जितना बक कर सकते हो कर लो, क्योंकि इंप्रूव करना है ना, इसलिए। समझ रहे हो ना? तो छत पे जाओ, इंग्लिश बोलो। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, इट्स ऑल राइट,
खुद से बात कर लो, खुद की तारीफ करो इंग्लिश में। ओ माय गॉड, आई एम गुड पर्सन, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द ग्रेट पर्सन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑन दिस प्लेनेट। खुद की तारीफ कर लिया इंग्लिश में। कोई टॉपिक ले लिया, मान लो मैं तुम्हें एक टॉपिक दे देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ फादर, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इतने सारे टॉपिक्स है भाई, कहाँ हो तुम कहाँ हो? इतने सारे टॉपिक्स है भाई, कोई सा भी टॉपिक चूज करा और स्टार्ट कर दिया कन्वर्सेशन। इस तरीके से भी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। और आई एम गिविंग 100% गारंटी दैट वन डे विल कम एंड यू विल बिकम अ फ्लुएंट, एक्टिव, इफेक्टिव, एनर्जेटिक and impactful public speaker. You will become an icebreaker, splendid and supercalifragilistic public speaker. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया ये वाला, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like, subscribe and share. Thank you so much for watching my video, for giving me your precious and auspicious and special time. Thank you so much. Bye bye, tata, see you tomorrow in the next session. Wish you all the best. Have a nice day. Like, subscribe and share. Keep learning, keep improving, keep shining, and keep smiling. Thank you.